So guys, myself Razaul Hassan Ansari, and I am the president of the CodeChef UIT chapter. And I welcome you all to the introductory session, induction of the college chapter. So let's discuss about the agenda today. So we will be meeting the team today, and we will help you get started in competitive programming and discuss about the future plans and upcoming sessions. So let's first meet the team. Nitish, next slide, please. Next. So firstly about myself, I am currently in the third year of my computer science engineering degree. I am a Munstack developer and I am a highly enthusiastic competitive coder. Now about our event lead Nitish Kumar Tiwari. Hello everyone. I'm Nitish, event lead of this chapter, and I'm also in third year CSC. And yeah, that's it. And you are always welcome with your doubts and queries or anything you want to share with us, and we'll try our best to help you out. As far as my competitive coding journey, I am active in all the CP platforms, and yeah, I have done many unique problems, so I am capable to solve your queries and other doubts. So our two members are not available today, so I will be giving the introduction. So firstly, Nitin Punder. Nitin Punder is the outreach lead of our team and he is one of the great competitive coders that I know. He is active on CodeChef, Codeforces, and he is also pursuing his third year from computer science engineering. So as far as I talk about the Saurav Singh, he is our competitive programming lead. And if I talk about his CP journey, he's specialist at Codeforces and 4-star coder at CodeChef. Okay, so myself Rishabh, and I'm currently in my fifth semester. I'm in IT branch, and as you can see, I'm the executive member of this chapter. And so I've been doing CP for about 10 to 12 months. And yeah, so if you have like any doubt regarding CP or anything in general, right? So you can ping me up, or you can contact any of the members here. So yeah, that's pretty much about me. Hey guys, I'm Adarsh, one of the executive members of the CodeChef UITPU chapter, and I'm currently pursuing my Bachelor's of Engineering in Information Technology. I'm in third year, and if you have any doubt, feel free to contact me. Hello everyone, this is Suryakant Pandey and I am second year CSC student at CHC branch, and if you have any doubts you can contact me anytime and I will be happy to help you all. Thank you. गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है। मैं थर्ड ईयर में हूँ, आईटी ब्रांच। मैं सीपी करते हुए मुझे 7-8 महीने हो गए हैं। मैं एक्टिवली कोड शेफ पे करता हूँ कोडिंग, मेनली प्रैक्टिस के लिए कोड फोर्सेस। मेरी बेस्ट रेटिंग अभी तक कोड शेफ पे 5 स्टार है, ठीक ठाक है। मेनली लॉन्ग चैलेंजेस काफ़ी करता हूँ, शॉर्ट पे भी स्टार्ट किया मैंने। यही है। बाकी कोई भी डाउट हो सीपी से रिलेटेड या कोई भी कैसा भी फालतू डाउट हो, एक्सरसाइज से रिलेटेड ही पूछ सकते हो। मैं यूआईटी का हैंड रेसलिंग चैंपियन भी हूँ। ठीक है, तो जैसे भी डाउट हो पूछ लेना भाई, जिससे भी रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड या कैसा भी। So first we will be discussing how to get started with CP. So next slide, please. So as we know, if competitive programming is seen from a wider perspective, it's just solving logical and structural problems. But that's not enough. You know, we also need to communicate our ideas with the machine. And for that, we need programming. We need programming languages. So let's discuss about the few more popular programming languages that are C++, Java, Python. So before you go start learning one of these languages, let me tell you about some of the disadvantages and advantages of each of these languages. So let's first start with C++. So it is the language preferred by most of the competitive programmers, and it is due to the fact that it is very fast and it is very easy to understand language. On the other hand, Java is a little bit difficult and is also a little bit slower, only a little bit slower as compared to C++. On the other hand, Python, which is the easiest to use, the codes are written in Python are really short and really easy to understand.
But the problem with Python is that it is very slow as compared to C++. I personally use and recommend C++, and all of my colleagues here present do competitive coding in C++ only. So now moving on. Next. Okay, so see what happened is like क्या होता है अपने साथ यार कि जैसे हम थोड़ा बहुत सीखते हैं, राइट? हमने स्टार्ट करी कोई लैंग्वेज सीखना, हमने सिंटैक्स वगैरह सीख लिया पूरा अच्छे से, तो क्या होता है लाइक सिंपल प्रॉब्लम्स जैसे होती हैं, लाइक जैसे फॉर लूप की कोई प्रॉब्लम होगी, सिर्फ एरर ट्रैवर्स करना है, या इफ एल्स की प्रॉब्लम होती है, वो हम काफ़ी इजीली और काफ़ी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है? तो हमें लाइक अच्छी कमांड जाती है एक सिंटैक्स बेसिकली एक सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज पे। पर फिर क्या होता है कि जैसे हम कॉन्टेस्ट वगैरह स्टार्ट करते हैं देना, तो हमसे लाइक हमें थोड़ा हो जाता है कि हमारे से पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा, या काफ़ी जो ईजीएस्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो नहीं हो रही। आई एम श्योर ये वाली चीज़ लाइक काफ़ी रिलेट कर पाएंगे कुछ लोग जो अभी प्रेजेंट हैं, या फिर जिन्होंने थोड़ा बहुत देखा भी होगा आसपास कहीं किसी साइट वगैरह पे, कोड शेफ, कोड फोर्सेस वगैरह पे। तो क्या होता है कि सिर्फ सिंटैक्स से बात नहीं बनती, लाइक इसमें क्या होता है तुम्हारी थोड़ी लॉजिकल बिल्डिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग होती है बेसिकली, वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि तुम क्वेश्चन बेसिकली इंटरप्रेट कर पाओ और इसको लाइक समझ अपने आप से पाओ, लाइक सो यू नीड लाइक okay, so you basically need logical reasoning, and you need various data structures and all, right? So ये चीजें कैसे सीखने को मिलती हैं, लाइक जब तुम प्रैक्टिस करते हो, लाइक किसी क्वेश्चन पे अटकते हो मान लो, ठीक है? तो क्या होता है लाइक तुम सिस्टम 10 20 30 40 50 जितने मिनट्स देते हो, उसके बाद तुम उसका सोल्यूशन देखते हो बेसिकली, राइट? तो वहाँ असली ग्रोथ होती है। तो सोल्यूशन देख के तुम्हें लगता है कि कोई नया नया टॉपिक है, या कोई नया एल्गो है जो मेरे को नहीं आता, या कोई नया कुछ नई चीज़ है जो मेरे को कभी मैंने सुनी नहीं है, तो तुम उसके बारे में सर्च करोगे, उसको पढ़ोगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करोगे, तो यहाँ असली ग्रोथ होती है। तो सिर्फ लाइक जो रूट चीज़ है वो यही है कि तुम सिर्फ प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, डिमोटिवेट कम होना है, एंड प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, दैट इज द मेन थिंग। सो या हेलो। हाँ, तो भाई देखो दोस्तों, मेन बात अभी ऋषभ ने बताई। ये पहली बात है कि हम स्टार्ट जब करेंगे सीपी से, जो भी हम स्टार्ट करते हैं, तो अब जैसे अभी तक आप ग्रुप पे देखोगे तो बच्चे मेनली क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या करें, सी प्लस प्लस करें, सी करें, पाइथन करें, या फिर कोड शेफ पे कैसे चालू करें, कोड फोर्सेस पे कैसे चालू करें। उससे पहले एक जो मेन क्वेश्चन आपके पास है वो ये कि हम जैसे आप जब लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लैंग्वेज सीख क्यों रहे हैं। तो लैंग्वेज सीखने का एक सिंपल जो मतलब है वो ये है कि जो भी चीज़ आपको दी जाए, जो भी टास्क दिया जाए, वो आप कंप्यूटर को समझा सको। जैसे टास्क क्या हो सकता है, 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है? कैसे कर सकते हैं? कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो आप। अब बात होती है कैसे नंबर स्टोर करोगे, ठीक है? अगर आप नंबर स्टोर कर रहे हो तो कितनी रेंज तक का स्टोर कर सकते हो, मतलब कि आपने कीबोर्ड पे 100 लिखा तो कितने जीरो लिख सकते हो। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको लैंग्वेज बताती है कि क्या आपके बैरियर्स हैं आपके फील्ड के अंदर, मतलब आपके पास टोटल आपकी आर्सेनल के अंदर कितने वेपन्स हैं आपके पास, क्या क्या आप यूज कर पाओगे। तो ये सबसे पहली स्टार्टिंग जो आपकी होनी चाहिए, जब हम कहते हैं ना कि लैंग्वेज करो पहले, तो यही है। फिर आप कहते हो कि सर फिर सीपी क्या है, तो भाई सीपी कुछ नहीं, किसी लैंग्वेज का यूज है किसी प्रॉब्लम में। जैसे कि सीपी एग्जांपल मैंने आपको बोला कि कोई भी नंबर है, ठीक है, आपको बताना है कि 2 नंबर को प्राइम है या नहीं, है ना? अब मैथमेटिकली आप सॉल्व कर लोगे कि भाई हाँ इन दोनों का जीसीडी चेक करते हैं या फिर एचसीएफ चेक करते हैं, अगर वो 1 आ गया तो ये दोनों नंबर को प्राइम है। पर वही चीज़ अब हमें कंप्यूटर से करवानी है बहुत जल्दी। जैसे कि मैंने आपको बोला 3 और 2 को प्राइम है, आपने बोला है, मैं एचसीएफ कितना है, 1 है, बढ़िया। को प्राइम नंबर्स होते हैं जिन 2 नंबर्स का जो कॉमन डिवाइजर होता है वो 1 ही होता है, और कोई उसके अलावा नहीं होता। तो अगर मैं बोलूँ आपको 1 2 2 2 4 5 और 1 8 8 8 1, ये दोनों को प्राइम है, तो फिर भाई अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब ये बहुत बड़े नंबर है, तो आप मैनुअली करोगे तो टाइम लगेगा, पर हम कंप्यूटर से यही काम बहुत जल्दी करा सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं अपने कंप्यूटेशनल पावर जो काम में आती है। तो मतलब जो हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन था ना कि सीपी और लैंग्वेज सीखने में, लैंग्वेज सीखना एक ब्रिज है
आपके कामों को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो वही है, मतलब अब कहते हो कि आप पूरी लैंग्वेज पहले पढ़ें या C++। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं काफी जने, जैसे ग्रुप में काफी बच्चे करते हैं। तो उससे रिलेटेड जो एक बात है वो ये है कि भाई आप लैंग्वेज करते रहो, साथ साथ में क्वेश्चन भी देखते रहो। जैसे आप कोई भी चीज़ होगी ना, तो मतलब जैसे आप एग्जांपल लो, आपको फुटबॉल खेलना है, ठीक है, आप फुटबॉल खेलने गए फील्ड में, भाई कोच के पास गए, तो कोच ने बोला चल पहले भाग के दिखा। ठीक है, तो इसको आप लैंग्वेज की तरह सीख लो, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपने बोला मुझे CP करनी है, चल C++ की थोड़ी बेसिक बातें पता, तो भागने से रिलेट हो गया। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ, अगर मानो प्रोफेशनल फुटबॉलर्स अगर भाग रहे हैं 100 मीटर 11 सेकंड में, तो कोच ये थोड़ी बोलेगा पहले 11 सेकंड कर अपना टाइम, तभी मैं तेरे को खेलने दूंगा। ऐसा नहीं होता ना। वो भागने की प्रैक्टिस कराता है थोड़ी देर, उसके बाद कहता है चला आ जा, बॉल उठा, फिर वो बॉल के साथ भगाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है। आप थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, साथ साथ में आप क्वेश्चन देखो। आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये तो मैंने पढ़ लिया, इफ एल्स मैंने पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि आपको देखना है, मानो सबसे बेसिक एग्जांपल, आपने हल्का सा पढ़ा पहले C++, फिर आपने पहला क्वेश्चन उठाया, बहुत आसान है, क्या आया कि नंबर इवन है या नहीं। तो आपके दिमाग में है कैसे चेक करते हैं नंबर इवन है, क्या वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, ये चेक कर लूंगा बस। फिर आप इसको सोचोगे कि मैंने जो लैंग्वेज पढ़ी है उसके अंदर कोई ऐसा तरीका है कि मैं चेक कर लूँ कि भाई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई मैं 2 को स्टोर कैसे कराऊंगा। आपको भाई अगर आपने C++ करी है तो आप कहोगे अच्छा भाई इंडेक्स बना के इक्वल टू नंबर इनपुट करा लूंगा जो भी होगा हमारे पास, CN करके। अगर आप पाइथन कर रहे हो तो आप डायरेक्टली कह रहे हो कि भाई कोई वेरिएबल नहीं चाहिए, डायरेक्टली कर लूंगा। तो इस टाइप से आप पहले बेसिकली फंडा देखते हो कि हाँ कि मैं नंबर स्टोर कराऊंगा। फिर आप देखोगे मैं इसको डिवाइड करना है, फिर आप देखोगे मैं डिवाइड करने का कोई तरीका है, हाँ है। फिर आप देखोगे डिवाइड से बढ़िया अगर मेरे को रिमाइंडर मिल जाए तो, क्योंकि हमें इवन चेक करना है बस, रिमाइंडर 1 या 0। तो आप देखो रिमाइंडर का कोई तरीका पढ़ा था मैंने, हाँ भाई मैंने पढ़ा था, मॉड्यूलो मॉड्यूलो ऑपरेटर पढ़ा था, तो मैं मॉड्यूलो यूज करूंगा। ठीक है, फिर आप सोचोगे अब मेरे को यहाँ पे ऐसी कंडीशन आ रही है, अगर 1 है या 0 है। तो सोचोगे अगर वाली कंडीशन पढ़ी है मैंने, हाँ भाई इफ एल्स पढ़ा है मैंने, अगर इफ ये है तो ये काम करो, नहीं है तो ये काम करो। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ना, इसको भी आप CP का क्वेश्चन कह सकते हो, पर ये बहुत ही बिगनर लेवल का क्वेश्चन हो गया, बहुत ही ज्यादा छोटा है, यही है CP। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भाई फिर बच्चे आते हैं कि सर CP ठीक है, DS से क्या चीज है। कह रहे कि DS से तो आनी चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। अब एक चीज देखो, मैंने बोला आपको 20 जने आएंगे, वो अपना डाटा डालेंगे। ठीक है, तो आपको उस डाटा को इनपुट कराना है और उसका सम निकालना है। पहले आपको रखना है वो डाटा एक जगह। तो अब दो तरीके हैं रखने के, या तो आप 20 वेरिएबल बनाओ। कैसे? एक वेरिएबल ए बनाया, उसमें इनपुट लिया पहला, बी बनाया उसमें लिया, सी बनाया उसमें लिया, डी बनाया उसमें लिया। ठीक है भैया, वैसे आप 20 वेरिएबल बनाओगे, इतने ज्यादा वेरिएबल, और हमें डाटा हर जगह स्टोर करना पड़ता है अप्रोक्सीमेटली। तो अगला क्वेश्चन जो अब आता है DSA वाला, डाटा स्ट्रक्चर वाला। यहाँ पे हमारे डाटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस होते हैं एक तरीके से, जैसे एरे हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला 20 चीजें हमें स्टोर करानी है, तो हम एक स्टोर बना लेंगे। जैसे कि आप घर पे हो, ठीक है, घर पे आपने देखा कि भाई मेंबर्स हैं, आपको एक कमरे में 4 जने, मतलब आपको एक ऐसे वेरी मतलब वो बनाते हो एक अपने एस्टिमेट से कि एक कमरे में 4 जने रहेंगे, उसके हिसाब से हम स्पेस देंगे। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको क्या करना है कि कंप्यूटर में आपके पास प्रिविलेजेस होती हैं कि आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको डाटा डाटा आइटम आपको 1000 नंबर स्टोर कराने हैं, तो उसके लिए आप एरे डिफाइन कर लोगे। ठीक है, और भी तरीके होते हैं, लिस्ट कर ली या कुछ और। तो ये चीज़ हमारी स्टार्टिंग है जस्ट डाटा स्ट्रक्चर की, कि कैसे हम डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, और डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम क्या चीज़ है। अब एक चीज़ देखो, आपने फिजिक्स पढ़ी है सबने 11th 12th में, है ना। उसके अंदर एक टाइप के काफी फेमस क्वेश्चन रहते थे अपने, कि भाई x डिस्टेंस में जाके dx विड्थ का एलिमेंट ले लो। ऐसे पढ़े होंगे आपने, जब वेरिएबल एक्सेलरेशन वगैरह होती थी, ऐसा कुछ था ना। भाई मैंने भी ज्यादा ढंग से नहीं पढ़ा था उस टाइम तो इस टाइप के थे। तो हमें मतलब बेसिक एक वो पता थे कि एक क्वेश्चंस का एक मतलब वो है, क्या नाम है, टाइप है। कि मैंने बोला अबे यार ये तो वो वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर +1 -1 करते हैं इस टाइप वाले में। जैसे आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखोगे, वो यार इसके अंदर तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, है ना, इसका इंटीग्रेशन ये वाली आइडेंटिटी। तो वही एल्गोरिदम्स है, काफी सारे वेल नोन एल्गोरिदम है जो लोगों ने डेवलप किए हैं अच्छा खासा टाइम देके। ठीक है, एक बार होल्ड करो जरा।
हेलो। तो फिर अब मैं उस जगह पे था कि पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपको वो पता है तो अगर उसी वेरिएंट का कोई और क्वेश्चन आया तो आप उसे कर लोगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मतलब ये अपने एल्गोरिदम का काम है कि आपको पर्टिकुलर टाइप के एल्गोरिदम्स दे रखे हैं, उनको आप देखोगे अच्छा इनको इस तरीके से किया, फिर आप जिस जो उसमें तरीका यूज हुआ है वो आप अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। ये फायदा आपको एल्गोरिदम्स का होता है। और उसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है, ये रीड एड ट्यूटोरियल्स, वॉच वीडियोस, सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशंस, ये सब। तो ये देखो एक बेसिक बात है कि जैसे आप क्वेश्चन किया आपने, आप डायरेक्ट डाउट मत डालो, मतलब उससे रिलेटेड बहुत चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मानो अभी ग्रुप पे जैसे बच्चे डाउट डालते हैं कुछ भी कि इस लूप के अंदर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब उसमें एक बुक की पीडीएफ आपको भेजी है, एक बार आप उसको खोल के देखो। काफी बेसिक चीज है, जैसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई आप इसका वॉइड वॉइड का काम क्या होता है, तो ये आपको डायरेक्ट गूगल पे भी मिल सकता है। या फिर अगर आपको बेसिक बात बताऊँ तो सी प्लस प्लस से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो वो बुक जो मैंने पीडीएफ में भेजी है सी से रिलेटेड, तो वो सी वाली बुक कर लेना। और बाकी एक दो बुक और अभी हम डाल देंगे। और अभी थोड़ी देर मतलब हम आपको बाद में अभी रिसोर्सेज दे देंगे कौन से वीडियोस से आप देख सकते हो स्टार्टिंग में। और बाकी मंडे को आपका सेशन होगा, अभी कल ही, उसमें वो सेशन मैं ही लूंगा। तो उसके अंदर मैं काफ़ी इसी टाइप की बातें करूंगा, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, और खुद भी कराऊंगा कल, मतलब काफ़ी बेसिक बेसिक बातें जो आपको चाहिए। फिर उसके बाद ये हैकर रैंक और हैकर अर्थ ये बात कल ही करते हैं, ठीक है। मंडे को ही जब सेशन लेंगे कि कैसे क्या स्टार्ट है, क्या काम है। बस अभी जो आपको करना है आज सब जने कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल कर लेना। ओके, थैंक यू भाई। चलो अब अगला चैनल। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना बीच में, ठीक है, कैसा भी डाउट हो जो भी हो। ओके गाइस, तो यहाँ तक तो बात हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि हमारा क्या रोल है इसमें, कि हम क्या करने वाले हैं, हमने कम्युनिटी क्यों बनाई है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कोडिंग तुम कहीं से तो सीखोगे, कॉन्सेप्ट सीखोगे। कोडिंग सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सिर्फ सिंटैक्स तक लिमिटेड नहीं है कि तुमने लैंग्वेज सीख ली, फॉर लूप चलानी आ गई, फैक्टोरियल निकालना आ गया, सिर्फ ये नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम 4 साल में मतलब सिर्फ सी प्लस प्लस का सिंटैक्स सीख के छोड़ दोगे और तुम्हारा खत्म हो जाएगा, नहीं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अ, तो वो हम कराएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हम रिसोर्सेज भी शेयर करेंगे तुम्हारे साथ। कॉन्टेस्ट कराएंगे हम, टाइम टू टाइम कॉन्टेस्ट होते हैं कि तुम्हें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस के टाइम पे तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम है, बट कॉन्टेस्ट क्या होता है, लिमिटेड टाइम में तुम्हें जितना जल्दी तुम कर सकते हो, मतलब लिमिटेड टाइम में करना होता है जो प्रॉब्लम दी गई है। तो जो जितना जल्दी करता है, इट्स टाइप ऑफ मतलब स्पोर्ट है ये, एक सॉर्ट ऑफ, कि जिसने जितना जल्दी किया उसकी रैंकिंग उतनी बेटर आएगी। जस्ट लाइक तुम जेई में करते थे, जिसके जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे, वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी है कॉम्पिटिटिव। जो जितना जल्दी करेगा उसकी उतनी बेटर रैंकिंग होगी, उतनी बेटर रेटिंग होगी। ऑल्सो हम तुम्हें काफ़ी रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, और जितने भी कॉन्टेस्ट होंगे उनका डिस्कशन उस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं। लाइक वीकली टॉपिक्स होंगे जो जिस पे सेशन लेंगे हमारे मतलब टीम के मेंबर्स, और उस पे हम तुम्हें क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का तुम्हारे पास टाइम होगा अराउंड 1 वीक का। देन हम एक डाउट डाउट सेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग पे हम तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देंगे कि कोई स्निपेट समझ नहीं आ रहा है, कोई पीस ऑफ कोड तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है लैंग्वेज का। तो यही काम रहेगा, ये हमारा रोल है। हमें तुम्हें हेल्प करना है सीपी में ग्रो करने का। ओके, नीतीश, नेक्स्ट। सो अगर लाइक यू हैव, मतलब तुम लोगों ने देख ही रखा है अभी कि इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी होते हैं कोडसेफ कम्युनिटी में। तो अगर तुम्हें एग्जीक्यूटिव मेंबर बनना है तो सबसे पहली चीज़ है कि तुम्हें कम्युनिटी मेंबर बनना पड़ेगा कोडसेफ चैप्टर का। वो बहुत ही सिंपल है, बस जो लिंक है वो तुम्हारे साथ शेयर कर देंगे हम लोग, और उस पर रजिस्टर कर लेना, बेसिक थिंग्स मांगेगा उसका, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने का ये प्रोसेस है बेसिकली कि सेशंस होंगे, सेशन से रिलेटेड जो पढ़ाया जाएगा सेशन में, उससे रिलेटेड कॉन्टेस्ट होगा। कॉन्टेस्ट के टॉप 3 जो कंसिस्टेंट पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके साथ इंटरव्यू होगा, और उनमें से बेस्ट जो होगा वो चूज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अगर नहीं होता पहली बार में तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मतलब कि ये चलता रहेगा ऐसा, ठीक है। तो तुम लोग चांस तुम्हें मिलता रहेगा हर बार, जैसे अगर एक कॉन्टेस्ट खराब गया तो तुम्हें दूसरा मिल जाएगा, ठीक है।
तो दूसरे कॉन्टेस्ट में अच्छा कर लेना। तो बस यही है। और कम्युनिटी मेंबर्स के लिए मतलब रजिस्टर कर लेना वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो एग्जीक्यूटिव मेंबर बनना मुश्किल हो जाएगा, लाइक कॉन्टेस्ट देने के बाद भी। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो। हाँ, तो हमारा जो अगला सेशन होगा वही वो कल होगा, मंडे को। उसमें बेसिकली जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, काफ़ी बेसिक बातें डिस्कस करूंगा। मतलब हम कोई से मतलब किसी पर्टिकुलर में डिस्कस नहीं करेंगे। मैं जैसे हम लिखते हैं हैश टैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम, वो क्यों लिखते हैं, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, वो क्यों लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इंट मेन है, उसको लिखने का कारण क्या है। उसके बाद और बेसिक क्वेश्चन, इंट जितने भी डाटा टाइप्स हैं वो किस काम पे आ रहे हैं, कौन सा डाटा टाइप कब यूज़ करना है, क्या डाटा टाइप का यूज़, टाइम लिमिट्स, मतलब टाइम लिमिट क्या चीज़ है। एक हल्की फुल्की बात टाइम लिमिट पे करेंगे कि टाइम लिमिट करते रहते हैं हर कोई, वो है क्या चीज़, और कौन सा वेरिएबल कब यूज़ करना चाहिए, और क्या अंतर आता है कि हम कौन सा वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। अगर हमने लॉन्ग लॉन्ग इनकी जगह लॉन्ग लॉन्ग यूज़ किया है तो मेमोरी पे कितना इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे मेनली कल कवर करेंगे हम। और जैसे बेसिक बेसिक बातें, इफ एल्स, मैं इफ एल्स से रिलेटेड आपको बातें बताऊंगा कि इफ एल्स कंडीशंस के अंदर आप कैसी कंडीशन यूज कर सकते हो, ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होना चाहिए। ऐसे अगर फोर लूप है तो मतलब इसके अंदर आपको कल कुछ, मतलब अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता ना तो भी कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली हर चीज ऐसी है कि जो आपको बस देख के सीखनी है। जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको एक जैसे आप पैदा हुए भाई, ठीक है, आपके पापा थे, उन्होंने बोला कि भाई किससे आप मिले, बेटा नमस्ते करो। आपने बस सीधा क्या किया, नमस्ते, ठीक है, बस खत्म। आपने पूछा पापा क्यों किया, बेटा तरीका होता है जब किसी मिलते हैं नमस्ते करते हैं। कह रहे ठीक है बाबा बढ़िया, और आप अभी तक करते आ रहे हो। आपने हेलो किया, नमस्ते या अगर हेलो करा तो भाई हाँ भाई हेलो किया, क्यों किया, ये तरीका है, आज तक लोग ऐसा ही करते आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली हम एक सिंटेक्स होता है हर चीज़ का। यहाँ पे आप हेलो कर रहे हो, कहीं पे बॉन्स जाओ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, सब हर जगह अपनी अपनी वो है। तो वैसे ही सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ये सब एक अलग अलग कंट्रीज मान लो जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं। अब आप काफ़ी चीज़ें रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है ना। मतलब इस सिनेरियो को आप कितना ही बड़ा कर सकते हो। सही बात है। अगर आप जिस भी कम्युनिटी में हो आपको उनके तरीके सीखने पड़ेंगे, सही बात है ना। आप इंडिया में हो तो आपको इंडिया वालों के स्टाइल से तरीके सीखने पड़ेंगे। अगर आप यूएस में हो तो आप यूएस वाले को तरीके से सीखोगे, ठीक है। जैसे कि आप इंडिया में हो तो आप कम इंडिपेंडेंट हो थोड़े, आप यूएस में हो तो ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलेगा आपको। ऐसे ही लैंग्वेजेस का भी है। अगर आप सी प्लस प्लस कर रहे हो आपको कम इंडिपेंडेंस मिलेगा, आप पाइथन से कर रहे हो आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलेगा। पर उनका फ़र्क भी फिर उतना ही चेंज होता है, मतलब उनका अपना अपना फिर डिसएडवांटेज भी है। सही बात है ना। तो इस चीज़ को मतलब कल और डिस्कस कर लेंगे काफ़ी डिटेल में। उससे रिलेटेड फिर देखो, ये जो हमारा क्या नाम है, जो टाइमिंग्स होगी उसके लिए पोल कराएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो मोस्ट प्रोबेबली देखो पोल करा लेंगे, बाकी देख लेना टाइमिंग। मोस्ट प्रोबेबली कल क्लासेस भी है ना, तो 6 या तो यही टाइम में रख लेंगे 6 to 7, या फिर पोल डाल देंगे एक बार,